Welcome students again to our first chapter, that is chemical reactions and equations, right? So we have already done the first part and let's revise what we have learned in the first part of this chapter. ठीक है? So first part में we have just introduced the chapter and we have seen what is the meaning of chemical reaction and how it can be written into equations, right? Some questions I asked कि कौन कौन सी reactions chemical reactions हो सकती हैं, कौन कौन से changes chemical changes और physical changes हो सकते हैं, right? We have seen some examples also and we are now able to understand by the characteristics of chemical reaction कि कैसे कैसे by appearance or by observing something we can say कि chemical reaction हो रही है या नहीं. For example, we have seen change in color, right? We have seen change in state, evolution of gas, change in temperature, formation of precipitate. All these definitions I told you, है ना? I told you about precipitate, what is precipitate, and I told you in a reaction also. And I told you that if energy is changing, then that also it would be a chemical reaction, right? So that's it for the first part. But now let's start moving further. Today we are going to learn balancing of a chemical reaction. ठीक है? अच्छा, balancing पे if I will just jump onto the balancing, maybe you will not understand what is the meaning of balancing. In our life, balancing means balancing everything. Like generally your mother or father suggest you कि balanced food खाओ, balanced diet लो. What is the meaning of it? प्रोटीन्स एक डाइट है आपकी जिसमें प्रोटीन्स भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, विटामिन्स भी होंगे, राइट, कैल्शियम भी होगा, है ना. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके डाइट में. सिमिलरली बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि आपके रिएक्शन में क्या क्लोरीन भी हो, सोडियम भी हो, एल्यूमिनियम भी हो, ऐसा नहीं है. द थिंग इज बैलेंसिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, और क्यों होता है और कैसे होता है विल बी सीइंग. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वुड बी balancing of chemical equations. Before that, in this slide, chemical equations and writing the chemical equations we have already seen. Let me write it once again. So I told you that when reactants, suppose R1 and R2 are our reactants, it will be undergoing in the reaction and it will form P1 plus P2, that will be products. ठीक है. I have shown you that बहुत सारी conditions भी होती हैं, like temperature conditions, pressure conditions, heating conditions, evolution of gas, formation of precipitate. इन सबको किस तरह से हम लोग show करते हैं reaction में, we have already seen. ठीक है. So that is the writing of chemical equation. That's it. क्यों लिखते हैं ये भी मैंने बता दिया है कि सारे scientists बड़ी बड़ी complex reactions को, it's not like you cannot write it as carbon is reacting with oxygen to form carbon dioxide. No, you're supposed to use chemical formulas, you're supposed to use some symbols, right, to make it understand, to make it easy, simply. So basically balancing of a chemical equation. Now chemical equation will be written whenever chemical reaction is happening. ठीक है. अच्छा, balancing क्यों important है? First of all, I would like to tell you that there is a law that is called as law of conservation of mass. ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट. सुना सा लग रहा है, कहाँ सुना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना. तो एनर्जी में क्या बोलते हो? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना. पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, राइट. सिमिलरली बहुत सारी एनर्जीज़ को डिफरेंट एनर्जीज़ में चेंज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. करते क्या है, हो ही जाती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन को काफ़ी देर तक चार्ज करो, 100% हो जाने के बाद भी चार्ज करोगे तो क्या वो हीट हो जाएगा, राइट.
ये तो सबने एग्जाम्पल देखा ही होगा ऑफ कोर्स. सो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एक्चुअली चेंजिंग टू हीट एनर्जी. ठीक है. सिमिलरली मास के केस में भी ऐसा होता है. हमारे यूनिवर्स में कोई भी मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता. ठीक है. सो इट इज़ समथिंग लाइक कि इफ अ मास इज देयर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर देयर, it will be formed, it will not be destroyed, never. Whatever is present, it can only change to from one form to another. ठीक है. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, that's it. okay. So law of conservation of mass chemical reactions में भी लगता है. अगर दो चीज़ें हैं, they are reacting chemically, so जो प्रोडक्ट बनेगा वो obviously उसका जो मास होगा वो इक्वल होगा रिएक्टेंट्स के मास से. द मास शुड बी इक्वल. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट इफ वी हैव reactant 1 and reactant 2 and it's reacting together and forming P1 plus P2 as products. So if the R1 and R2, right, has mass M1, total mass, and total mass of products is M2, so M1 will be is equals to M2. ठीक है. This is the law of conservation of mass and it is applied in balancing of a chemical equation. ठीक है. That's it. This is basically the very basic part and very basic application of law of conservation of mass. Now दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी समझना थोड़ा मुश्किल है. कह रहे हो, अच्छा आप समझ रहे होगे कि ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो द लॉ, but why when we are in the laboratories, how we should follow it, right? Let's see one example. Let me tell you a story. Story is, suppose there is a reaction. Let's H2 plus Cl2 gives HCl. ठीक है. अब देखो मैं बताती हूँ केमिकल फार्मूला, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूलाज. आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर क्लास 9th. ठीक है. एंड मॉलिकुलर मास एंड एटॉमिक मास भी हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं. सो आई बिलीव कि मॉलिकुलर मास सबको निकालना आता है. हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास होता है 2, राइट. Cl2 का होता है Cl का होता है 35.5. सो बेसिकली इफ Cl2 विल बी देयर, इट विल बी 73, राइट. It would be 71. Okay. Yes. And if I tell you about HCl, so you will find out that it is 36.5, right? Now अगर reactants की mass को plus करो, sum करो and product की mass से देखोगे तो it is not equal. According to law of conservation of mass, it is not equal. ठीक है. So we can say that the reaction is not balanced, right? पर बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमारे लेबॉरेटरी में कैसे हेल्प करेगी. सी, इफ़ सपोज आई एम अ साइंटिस्ट, है ना, और किसी ने मुझे ऑर्डर किया, मुझे कहा गया कि मुझे HCl सोल्यूशन बनाना है एंड दे आर सेइंग कि HCl उनको चाहिए 30 ग्राम्स HCl चाहिए and I have to mix some amount of H2 and Cl2 to make 30 grams of HCl, right? Suppose मैं Cl2 को, अभी हम लोग क्या करते हैं, Cl2 को थोड़ा इग्नोर करते हैं, रहने देते हैं. अभी एक रिएक्टेंट से बात करते हैं. एक रिएक्टेंट में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. फाइन. Cl2 को भी रहने देते हैं, H2 के हिसाब से बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, द रिएक्शन दैट आई हैव रिटन, 2 grams of H2 is actually forming 36.5 grams of what? HCl, है ना. ठीक है. तो 1 gram of HCl will be formed by 2 divided by 36.5 grams of H2. अब मुझे एक्चुअल में बनाना कितना है, 30 grams HCl and it would be 2 by 36.5 multiplied by 30 grams of H2. Actually मुझे इतना बनाना था, that's why मैं ये कैलकुलेशन करूँगी for grams of H2. मुझे कितना grams of H2 लेना है, इसके लिए मैं this whole calculation I will be doing. Fine.
अब ये कैलकुलेशन मैंने की नहीं, कि करने से पहले मैंने अपने सीनियर साइंटिस्ट को दिखाया कि सर ये देखिए ये कैलकुलेशन है और इस इतना अमाउंट ऑफ H2 लेने से मेरा 30 ग्राम्स ऑफ HCl बन जाएगा, ठीक है, एंड दैट वुड बी परफेक्ट। जो भी जिसने भी ऑर्डर दिया है हम उसे 30 ग्राम्स ऑफ HCl दे सकते हैं। तो मेरे सीनियर साइंटिस्ट ने कहा कि नो, डेफिनेटली नॉट, you can't be a scientist because you don't even know how to actually form a chemical compound. Now you might be thinking कि he said because of Cl2. No, it's not like that. He said it because actually 30 ग्राम ऑफ HCl इतने अमाउंट से फॉर्म होगा ही नहीं। गलती कहाँ हुई थी? गलती हुई थी इस 36.5 ग्राम्स में, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। बेसिकली बैलेंसिंग करने, बैलेंसिंग यही काम आती है। अगर हमें किसी कुछ प्रोडक्ट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोडक्ट बनाना है, जैसे 30 ग्राम्स बनाना है या 40 या 50 या 100 या 1000 ग्राम्स, ठीक है, उसको बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज़ होगा ये रिएक्शन से ही पता चलता है। एंड इफ़ यू आर नॉट राइटिंग योर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, then you will never be able to find or you will never be able to form that particular amount of product, ठीक है। तो जब फॉर्म नहीं कर पाओगे तो साइंटिस्ट बन भी नहीं पाओगे, राइट। तो बेसिकली गलती कहाँ हुई थी? 2 लगाना चाहिए था। अब 2 लगाने से क्या हुआ, लेट्स सी। यहाँ पे चलो मास देखते हैं कितना हुआ, 36.5, ठीक है। तो H2 HCl is 73 grams and we will see the mass of reactants, so together it will be 73 grams. Now the law of conservation of mass is followed. M1 is equals to M2, mass of reactants is equals to mass of products, and now when I will be calculating it for the mass of product, I will be able to calculate it correctly, ठीक है। छोटी सी स्टोरी थी, इससे ये समझ आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज़ कितना ज़्यादा होता है इन लेबोरेटरीज, ठीक है। ओके, सो अब बैलेंसिंग देखते कैसे हैं? अगर कोई रिएक्शन हमारे सामने लिखी होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि दैट इज़ बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एज यू कैन सी देयर इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज N2 plus H2 gives NH3, राइट। सो देखो क्या करना होता है, एक एग्जाम्पल मैं पहले खुद से देती हूँ, 1 सेकेंड। सपोज CaO कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद CO2 टू फॉर्म CaCO3, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। Now let's see how to check whether this reaction is balanced or not. हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHS, LHS मतलब reactants, यहाँ लिखेंगे RHS, RHS मतलब products, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जितने भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन। चलो कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक कैल्शियम है कैल्शियम ऑक्साइड में, सो आई विल बी राइटिंग इट एज 1 इन LHS. What about calcium in RHS? It would be 1 only, so 1, ठीक है. Carbon here in reactant side it is in CO2, carbon dioxide, so it will be 1. Here also it is 1 only, see, 1. Now what about oxygen? So oxygen, as we can see here it is 1 and here it is 2. So 1 plus 2 will be 3 and here also oxygens are 3. So basically number of atoms in reactant side and product side is equal. That's why we can say that this reaction is balanced. Okay, this is how we will be checking the balancing of a chemical reaction. Now suppose we have a reaction that is not balanced. ठीक है, देखते हैं ये वाली reaction. N2 is reacting with H2 to give NH3 and that is the this is the reaction that is actually fine. Like obviously it will be happening. जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अमोनिया गैस बनेगी. दिस इज अमोनिया. ओके,
Now let's see. Nitrogen element, number of atoms in reactants is 2. In product it's only 1, है ना, equal नहीं है. Hydrogen देखें तो number of hydrogens in reactants is 2, but number of atoms of hydrogen in products will be 3. So it is again not balanced, है ना. इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स देखने पड़ते हैं और किस तरह से बैलेंसिंग होती है. ये बैलेंसिंग कैन बी डन बाय method of balancing, that would be hit and trial हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को. राइट, N2 प्लस H2 गिव्स NH3. चलो, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड का, दैट इज select the compound in the reaction that is having highest number of atoms. Right? So highest number of atoms किस में? NH3 में of course. So let's do it. यहाँ पे again हम लोग LHS लिखेंगे, यहाँ RHS. ठीक है, यहाँ हमने लिखा NH3 में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. LHS में अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि नाइट्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में वो 2 है, RHS में इट्स ओनली 1. तो हम क्या करेंगे बेसिकली इसको बैलेंस करने के लिए, वी हैव टू मेक 1 as 2. सो जस्ट सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई 2 इन द RHS. ठीक है, अब देखो 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, लेट्स राइट द रिएक्शन हियर. फाइन. अभी चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन को ही बैलेंस करते हैं. फाइन, हमारी रिएक्शन ये बन के आई. नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू बैलेंस द एटम विच इज नॉट बैलेंस्ड येट. ठीक है, तो कौन सा बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड. अब जो हम रिएक्शन देखेंगे वो ये वाली रिएक्शन देखेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा एक एलिमेंट बैलेंस हो चुका है. ठीक है, एक स्टेप पूरा हो गया, तो हम अब दूसरा वाला लाइक जो रिएक्शन हमने फॉर्म की है फर्स्ट स्टेप पे वो देखेंगे. हाइड्रोजन देखते हैं. इस रिएक्शन में वी हैव 2 हाइड्रोजन्स इन द रिएक्टेंट साइड, बट इन LHS देयर आर 6 हाइड्रोजन्स. हाउ कैन आई से दैट? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 6. ठीक है, अब मुझे LHS को भी 6 बनाना है, so I can multiply something. 2 multiplied by 3 will be is equals to 6. So what I will do, I will simply write N2 plus 3H2 gives 2NH3, right? And now if you will see the number of atoms on the reactant side and the product side, they will be balanced. Okay, N2 plus 3H2 gives 2NH3. So let's see once.
see here nitrogen is 2, here also 2 nitrogens, okay, because 2 is multiplied with NH3. Here 6 hydrogens, so here also 6 hydrogens that we have already seen. So that's how the balancing is done by hit and trial method. The first step will be select the compound which has highest number of atoms. So we have selected NH3. Then we'll be moving towards जब हम बैलेंस कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा एटम बच रहा है जो बैलेंस नहीं है, तो जो बैलेंस नहीं होगा उसे बैलेंस करके हम अपनी रिएक्शन लिख देंगे. There is also one step. What's that step? After balancing, write the physical states of the compounds. ठीक है, inside brackets. ठीक है, what do you mean by physical states of the compounds? Whether it is a solid, whether it is a liquid or it's a gas or aqueous. तो जो भी होगा वो साइड ब्रैकेट्स में लिखना है. जैसे N2 मुझे पता है कि इट विल बी अ गैस, H2 को भी मैं जानती हूँ इट विल बी अ गैस, and ammonia is also a gas. ठीक है, so this reaction is now completed. Fine, N2 plus 3H2 gives 2NH3, and since it's gas evolved, so like gas भी लिख सकते हो, arrow भी दिखा सकते हो, that's not a problem. Now this process, this reaction by which formation of ammonia happens is called as Haber's process. ठीक है, Haber's process एक process होता है जिसमें अमोनिया फॉर्म होती है. जनरल नॉलेज, अभी हम जब क्लास 11th में जाएंगे 12th में जाएंगे विल बी लर्निंग मोर अबाउट Haber's process. ठीक है, नेक्स्ट चलो बात करते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं. विल सी reaction of Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. ठीक है, this is the reaction I believe that it is given in your NCERT books and we will see how to balance it. So हम लोग डायरेक्टली स्टेप्स करते हैं. पहले स्टेप में ऐसा कंपाउंड चूज करो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है. सो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स Fe3 और 4 में ही है. लेट्स बैलेंस इट, LHS RHS. Fe ऑक्सीजन. नाउ Fe अगर मैं LHS साइड में देखूँ दैट इज रिएक्टेंट्स, so I'll say 1. RHS में देखूँ so that would be 3. और अगर मुझे LHS और RHS को equal करना है by multiplying something, so I'll be just multiplying 3 here. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की. so ऑक्सीजन in the reactant side is 1 only in H2O and RHS में 4 है, तो इसको भी बैलेंस करना है तो 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब जो रिएक्शन इधर से बन के आती है वो लिखते हैं. चलो 3 Fe में 3 मल्टीप्लाई किया था तो 3 Fe प्लस H2O में कुछ भी नहीं किया है अभी, सॉरी H2O में 4 मल्टीप्लाई किया है, गिव्स Fe3O4 प्लस H2. अब देखो Fe इज बैलेंस्ड नाउ. ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 ऑक्सीजन, हियर ऑल्सो 4 ऑक्सीजन. Now we have to balance that atom which is not balanced yet. So second step में let's balance hydrogen. ठीक है, LHS
RHS हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम किस रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे, इस रिएक्शन के हिसाब से। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड इट इज 4 2 8, that is in LHS, and in RHS it is only 2. So what we have to do, you can tell me. Yeah, correct. So we have to just multiply 2 with 4, right? Sorry, we have to multiply hydrogen molecule with 4. So the final reaction will come as 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Now everything is balanced, you can check, and that's it. That is how we will be doing the balancing of a reaction, right? Last step, I told you that we have to write the last step also, that is writing the physical states. So it was 3Fe, Fe is a metal, plus H2O, it would be steam here, okay. H2 was 4, okay. Gives Fe3O4, iron mixed iron oxide is actually solid, and H2 gas, and you can write it like this, okay, because gas is evolving here. So this is the final reaction and the complete reaction, and that's it. Our balancing and writing the reaction is over. Fine. So I believe now you are able to do how to do the questions of balancing. Okay, we'll see some examples, and that would be the end of the topic. Okay, so let's see. Fine, let's do some reactions. Just wait. Okay. Write the chemical equation for the reaction of ammonia with oxygen to give nitrogen gas and water and balance it. So let's write the reaction, okay? Okay. Reaction of ammonia and oxygen to give nitrogen gas and water, okay? ये जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. Let's see, let's select that compound which is having highest number of atoms. तो वो NH3 ही होगा, क्योंकि NH3 में 4 एटम्स है और किसी में तो 4 एटम्स है नहीं. तो पहले स्टेप में चलो NH3 ले लेते हैं. LHS लिखो, RHS लिखो. ठीक है. नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, ध्यान से देखो. ओनली 1. RHS में 2. सो आई बिलीव हिट एंड ट्रायल से एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम मल्टीप्लाई क्या करें, जिससे मल्टीप्लाई क्या करें 1 में कि दोनों इक्वल हो जाए, 2 करेंगे. अब NH3 में हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है, राइट, LHS में. ओके, एंड RHS में कितना होगा, RHS में कितना होगा 2, H2O में. इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं करना. देखो यहाँ पे 3 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकती कि 2 बन जाए, 2 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकती कि 3 बन जाए. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर. 3 into 2 एंड हियर 2 into 3. ठीक है. सो बेसिकली क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं. NH3 में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन है, इट्स गिविंग मी एक्चुअली N2 एंड H2O मैंने 3 मल्टीप्लाई किया है, सो 3H2. इज इट राइट? यस. ओके, नाउ सी, राइट. अब देखते हैं नाइट्रोजन्स बैलेंस हुए कि नहीं.
रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 to the 6, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 3 to the 6, राइट। बचा क्या, ऑक्सीजन बचा। लेट्स सी, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, सो व्हाट शुड वी डू एक्चुअली? ओके, लेट्स डू इट, जस्ट वेट। फाइनल रिएक्शन क्या बनी थी? 2NH3 plus O2 gives कितना? N2 plus 3H2। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करनी है यहाँ पे हमें सेकेंड स्टेप में। तो ऑक्सीजन है LHS RHS, LHS में ऑक्सीजन is 2, ठीक है, और RHS में 3। अब देखो जो ये 2 है ये किसके फॉर्म में है? O2 के फॉर्म में। अगर मुझे इस O2 को 3 बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ध्यान से देखना, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन्स होते हैं, तो इनको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2O। अगर मैं इस 2 में OO में 3/2 मल्टीप्लाई कर दूँ, सो आई विल गेट 3 ऑक्सीजन्स, है ना। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 2NH3 plus 3/2 O2 gives N2 plus 3H2, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सेम चीज़ है, O2 को मैंने 2O लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ऑक्सीजन्स ओनली। लेकिन अब आप सोच रहे होगे क्या मैम फ्रैक्शंस में हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो क्या करें? गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बिकॉज 3/2 था, तो 3/2 में मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब राइट 4NH3 प्लस 3O2 गिव्स 2N2 plus 3 to the 6, right? 6H2, and that would be the balanced reaction. You can check it is balanced, ठीक है। This is the final balanced reaction. State भी लिख लेते हैं यहीं पे, 4NH3 गैस है तो गैस होगा ऑब्वियसली, O2 भी गैस ही होती है, N2 भी गैस ही होती है, यहाँ H2O भी स्टीम बनेगा, ठीक है। डन। सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन विथ सुपरहीटेड स्टीम टू गिव आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सी दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, सो कहाँ डिड यू फॉरगेट? अभी किया है। आयरन की रिएक्शन सुपरहीटेड स्टीम से, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, आयरन की रिएक्शन सुपरहीटेड स्टीम से, वाटर गैस में है तो स्टीम है ना, it will be giving iron oxide and H2. So we have done the balancing of this reaction. इसलिए हम एक और दूसरी बैलेंसिंग कर लेते हैं, चलो कोई दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं। The reaction burning of benzene, okay? Reaction is burning of benzene in presence of oxygen, ठीक है। Let's do it. C6H6, it is benzene, plus O2. Actually this is a combustion reaction. Combustion reaction हम कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 8 में, राइट। क्लास 8 में बहुत सिंपल सी combustion reaction पढ़ते हैं, that carbon will be reacting with oxygen, it will be forming CO2, and that's the most basic equation I told you also. So benzene when it is reacting with oxygen it also forms CO2 and water, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे combustion reactions, उसमें हम देखेंगे कि combustion reactions इसी तरह की होती हैं, कोई भी कार्बन कंपाउंड बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड इट विल बी फॉर्मिंग CO2 and H2, ठीक है। चलो इसे बैलेंस करना है, लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग।
तो सबसे पहले स्टेप में हमें C6H6 लेना है क्योंकि सबसे ज़्यादा एटम्स इसी में है। LHS लिखो, RHS लिखो, राइट। यहाँ लिखो कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन। LHS में कितने कार्बन? 6। RHS में कितने कार्बन? 1 ओनली। सो व्हाट शुड वी डू? मल्टीप्लाइड बाय 6। हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट्स में? 6। सो RHS में कितने? 2। क्या मल्टीप्लाई करें हम H2O में कि हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स हो जाए? 2 multiplied by 3 is actually 6. ठीक है। So now let's write the reaction that has come from first step. ठीक है। C6H6 plus oxygen gives कितना? 6 CO2 plus 3 H2O. Very good. Now if you will see, कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स बोथ आर बैलेंस्ड। ठीक है, अभी अभी हमने किया, पर क्या एक चीज़ बच रही है? एक चीज़ जो बच रही है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे O2 है, दैट्स गुड। यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन, 12 प्लस 3 15। प्रोडक्ट साइड में 15 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 ओनली। देखते हैं, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ 2 है, वो भी O2 के फॉर्म में है, राइट। यहाँ 15 है। क्या करें? 15 ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें? मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया था वैसे ही करना है। सिंपली C6H6 लिखो प्लस O2 लिखो। ठीक है, it's actually giving us 6 CO2 plus 3 H2O, and what I can do 15 by 2 O2. What does this means? कि 15 into 2 ऑक्सीजन है, so 2 से 2 cancel, 15 ऑक्सीजन, right? Like I told you, you can do this. Okay? Now अब क्या मैम? अब the thing is 15 by 2 O2 is not possible because it is fraction. So हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे the whole equation by 2. चलो देखते हैं। Right, 2C6H6 plus 15 O2 gives 6 2 ज़ा 12 CO2 plus 3 2 ज़ा 6 H2O. And now if you will calculate number of oxygen, it will be balanced. 15 2 ज़ा 30 oxygen here, and in products 12 2 ज़ा 24 plus 6, so it will also 30 oxygen. ठीक है, good, very good. So we have balanced it. We have balanced the equation. Now for writing simply the states, physical states. So benzene is liquid, oxygen will be gas, CO2 will be gas, no doubt, and H2O will be liquid. ठीक है, fine. So this is our final reaction. I hope you are able to understand. Now you might be thinking कि मैम रिएक्शन तो काफ़ी बड़ी हो गई है, रिएक्शन बड़ी है तो कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं? ठीक है, पता चल जाएगा। आई विल बी टेलिंग यू अ ट्रिक कि अगर डायरेक्टली MCQ में आता है तो किस तरह से आप यू कैन डू द सिंपल दिस रिएक्शन इन जस्ट 1 लाइन, राइट। लेट्स डू इट, लेट्स सी द ट्रिक फॉर कंबशन रिएक्शन, ओनली कंबशन ओनली। ठीक है, अब कोई आपसे कहे कि मान लो कि CH4 दैट इज़ मीथेन का कंबशन हो रहा है, मीथेन इज़ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करना है, तो ये समझ नहीं आएगा कि मतलब किस तरह से करें, एक स्टेटमेंट एक लाइन में कैसे कर सकते हैं।
एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू। देखो, मान लो CXHY एक है हमारे पास ऐसा कंपाउंड, ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, पर कितने ऑक्सीजन लगेंगे यहाँ पे, X + Y/4। अभी एग्जाम्पल भी देख लेंगे। टू गिव X CO2 and Y/2 H2। देखो यहाँ पे X और Y क्या है, X इज नंबर ऑफ कार्बन, Y इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। CH4 में देखो X की वैल्यू है 1, Y की वैल्यू है 4। लेट्स डू इट। CH4 प्लस X + Y/4, so that is 1 + 4/4। O2 gives X is 1 to CO2 and Y/2 is 4/2, that is 2, right? कंप्लीट कर लेते हैं। CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2। चेक करो, it will be coming as balanced equation। बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, डायरेक्टली बैलेंस करके आराम से आंसर लिख सकते हो इन MCQs। फाइन, एक कार्बन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स, 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन कितने, 2 2 ज़ा 4, हियर 2 + 2, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड, गुड। So if you have any doubts, you can tell me in the comments. Now let's move to one more trick of combustion, that is C6H5OZ। अब मान लो ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें ऑक्सीजन भी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, X + Y/4 - Z/2, है ना, gives O2, O2 gives XCO2, वो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं करवा दूंगी, कौन सी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पे X की वैल्यू है 6, Y की वैल्यू है 12 एंड Z की वैल्यू है 6। ठीक है, डन। चलो लिखते हैं, C6H12O6 प्लस X + Y/4, that is 6 + 12/4 minus 6/2, that is Z/2। O2 gives XCO2, so X कितना है, 6 CO2 plus Y/2 H2O, so 12/2 is 6। ठीक है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। C6H12O6 plus 12/4 is 3 × 12, 2 3 × 6, right? So it will be coming as 6CO2 only, gives 6CO2 plus 6H2। इस इक्वेशन को चेक करना, ये कंबशन ऑफ ग्लूकोज है। रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, तो उसमें ये रिएक्शन विल बी स्टडिंग। ठीक है, राइट। एंड ये रिएक्शन बेसिकली हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब एक्सोथर्मिक क्या होती है, वी विल बी लर्निंग इन द अपकमिंग क्लासेस। फाइन। So see, in today's class we have seen a lot of balancing examples. We have seen some examples of NCERT also. We have done some extra examples, and we have seen these tricks also, right? So tricks of combustion. अपने subjective exam में, subjective exam मतलब board के exam में what you can do, अगर इस तरह का कोई combustion reaction आती है balancing के लिए, तो you will be just writing all the steps and you can check whether the balancing is correct or not by these tricks. ठीक है, so this is the trick number 1 and this is the trick number 2. Okay, you can check it.
So, in today's class we have seen why balancing is important, and it is the application of which law of conservation of mass. Then we have seen how to do the balancing and how to check whether a reaction is balanced or not. We have seen hit and trial method, we have seen different examples, and your homework would be, you are supposed to complete the questions of NCERT. We will be doing, of course, but you are supposed to try it, fine. So, we will be meeting in the next class, and in the next class we will be learning about types of chemical reactions, fine. Thank you.